Okay, so today I'm going to talk about the consequences of STR using the Lorentz transformations. What are the immediate consequences of the special theory of relativity, or rather, the two postulates of the special theory of relativity, using which we derived the transformation equations between two inertial observers, which are known as the Lorentz transformation equations. ओके सो हमें पता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक बार लिख लेते हैं. We know the Lorentz transformation equations. सो गिवन द यूजुअल सेटअप, मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया है, बट गिवन द यूजुअल सेटअप जहाँ पे देयर इज एन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड relative motion is only along the x-axis with velocity v. So in that kind of a situation, the coordinates of any physical event x, y, z are connected to x dash, y dash, z dash, t dash using these equations. Using the Lorentz transformations. Okay, you can also have their inverse relationship, inverse LTs. Okay, now using these equations, because these equations have been derived using the postulates of STR, the Lorentz transformations have been derived using the postulates of STR, and hence they represent what the ideas of STR within them. So using this, we can talk about certain consequences, some very important consequences. Today I'm going to demonstrate them using the LTs, the Lorentz transformations. In the coming classes, I'll probably demonstrate them using geometry, space-time geometry. First, relativity of simultaneous events. Do you know what is the meaning of simultaneous events? Simultaneous events का meaning क्या होता है? Sir, occurring at same time. Yes, two events that are occurring at the same time. They may occur at a different location, but they occur at the same time. For example, let's suppose two explosions happening at the same time in different places, two light bulbs lighting up at the same time at different locations, two collisions happening at the same time at different locations. These are simultaneous events. So let us look at what relativity tells us about the nature of simultaneous events. So we have the same usual construct. One is an S frame of reference, x, y, z, and S dash frame of reference, x dash, y dash, z dash. Such that the S dash frame of reference is moving with a velocity v with respect to the S frame of reference along the x dash axis, and the origins of both of them coincide at time t is equal to 0, and their axes are parallel with respect to each other. Let's suppose that two events take place.
these two events are, let's suppose, some kind of a explosion. Let's suppose these are two explosions that take place. Okay, one explosion here, another explosion here. So it is explosion A and explosion B. Okay, so these are two physical events. Physical event A and then you have physical event B. Okay, I am saying that these are explosions. They may be two light bulbs switching on and off. There may be two collisions happening at the same time. Okay, now these two observers, both of them see these two physical events based on their frame of reference. One is in the ground, the other is moving. With respect to the person in the ground, they will have their own coordinates associated with these two physical events. So let's suppose with respect to S frame of reference, there will be a set of coordinates. With respect to S dash frame of reference, there will be a set of coordinates. Same for physical event B. With respect to S frame of reference, there will be physical coordinates, and with respect to S dash. ठीक है, with respect to S क्या होगा? Let's suppose XA, YA, ZA and TA with respect to S. And S dash के respect में क्या होगा? XA dash, YA dash, ZA dash and TA dash. For physical event B with respect to S, XB, YB, ZB and TB. With respect to S dash, XB dash, YB dash, ZB dash and TB dash. So these are the coordinates of the physical event A and the physical event B with respect to the S frame of reference, and these are the coordinates of the physical event A and physical event B with respect to the S dash frame of reference. All right, now they are connected to each other by Lorentz transformations. Now what we are saying here is that quite simply put, let's suppose that both events, A and B are simultaneous with respect to one of the observers. So let's suppose both the events A and B are simultaneous with respect to S frame of reference. Okay, S frame matlab the blue observer. So with respect to him, both the events are simultaneous. In that kind of a situation, simultaneous होने का मतलब ही है, if both the events are simultaneous with respect to the S frame of reference, it simply means that TA is equal to TB, right? That is, the time period difference between both the two events with respect to the S frame of reference is equal to 0. Yes? Yes or no? Yes. दोनों अगर साइमल्टेनियस है विथ रेस्पेक्ट टू द एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मीन्स उनका जो टाइम कोऑर्डिनेट है वो बराबर है. ठीक है, नाउ अगर टाइम कोऑर्डिनेट दोनों का बराबर विथ रेस्पेक्ट टू द एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेट्स लुक एट इट विथ रेस्पेक्ट टू द एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस. With respect to the S dash frame of reference, what you have here is that जो पहला इवेंट है TA dash, that is given by TA dash in the gamma TA minus V XA upon C square, and TB dash is equal to gamma TB minus V XB upon C square. So now what you can do is TB dash minus TA dash, you can find out what that quantity is. So if you find out what is the difference between TA dash and TB dash, then you will simply find that they are not necessarily equal to 0. करके देखते हैं एक बार. So गामा कॉमन ले लेते हैं, TB माइनस TA, ठीक है, माइनस V अपॉन C स्क्वायर XB माइनस XA. ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया? आई सेड दैट
TB minus TA is equal to 0. Therefore, this term will come out to be 0. Right? This term will come out to be 0. However, these two physical events का जो location है, they are not necessarily at the same place. XB minus XA is not necessarily equal. They are two different physical events. अगर दोनों इवेंट एक ही टाइम पे हो रहा है और एक ही लोकेशन पे हो रहा है तो इसका मतलब वो दोनों अलग अलग इवेंट तो हुए ही नहीं, एक ही इवेंट हो गया ना. एक ही जगह पे और एक ही टाइम पे अगर हो रहे तो वो एक ही इवेंट हो गया, दो इवेंट्स हुए तो हुए नहीं. तो देयरफॉर the XA and XB are not necessarily the same, are not necessarily equal. That is, XB minus XA is not necessarily equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि this is also not necessarily equal to 0. Yes, TB dash minus TA dash is also not necessarily equal to 0. Yes or no? Yes, sir. तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? Even if TB minus TA is equal to 0, that does not imply that TB dash minus TA dash is equal to 0. That does not imply. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि the relativity of simultaneous events क्या कहती है? Says that if two separate physical events are simultaneous with respect to one observer, it does not necessarily mean that they will also be simultaneous with respect to another observer, inertial observer in relative motion. ठीक है? अगर दो फिजिकल इवेंट्स मेरे लिए साइमल्टेनियस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों फिजिकल इवेंट्स तुम्हारे लिए भी साइमल्टेनियस होंगे. जितने ज़्यादा अलग अलग ऑब्जर्वर्स है, out of all possible observers, every observer may have different time periods of between two physical events. किसी एक के लिए साइमल्टेनियस है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और के लिए भी साइमल्टेनियस होगा. दिस इज़ द आइडिया ऑफ रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियस इवेंट्स. क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, sir. Relativity of simultaneous events, however, does not get rid of the order of events. ये चीज़ ध्यान में रखना. Relativity of simultaneous events does not get rid of order of events. इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से एक इवेंट ए पहले हुआ, उसके बाद दूसरा एक इवेंट हुआ, उसके बाद तीसरा एक इवेंट हुआ, तो ऐसा पॉसिबल ज़रूर है कि किसी दूसरे ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से दोनों इवेंट एक साथ हुआ, बराबर हुआ, उसके बाद इवेंट सी हुआ. ठीक है? लेकिन ये कतई पॉसिबल नहीं है कि जो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है वो ही चेंज हो जाएगा. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. दिस इज़ नॉट पॉसिबल.
मतलब साइमल्टेनिटी हट गया लेकिन ऑर्डर और या फिर कॉजालिटी नहीं हटा है। मतलब अगर आपका एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक जाता है, फिर दूसरे इवेंट से तीसरा इवेंट होता है, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको कोई एक ऐसा ऑब्जर्वर मिल जाए जिसके लिए दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं। दैट इज़ पॉसिबल। हाउएवर दूसरा इवेंट पहले वाले से पहले हो रहा है, वो कभी नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? The order of events are not going to change. It's just that two events may happen simultaneously for one particular observer, but for every other observer, the order is going to remain the same. ठीक है, understood? Yes, sir. All right. So let us go to the next consequence of the postulates of STR, which is the Lorentz transformations. Sorry, length contraction, not Lorentz transformation. क्या लिख रहा हूँ मैं? Length contraction. So दो physical events अगर simultaneous नहीं है, that is one consequence of STR. But similar consequence is also related to points in space. Let us draw the same setup. Okay, now let's suppose that okay, I'm trying to measure the distance between two points in space, and I'm going to talk about it in terms of let's suppose a scale. क्योंकि कोई भी distance होता है, आप किसी standard scale के through measure करते हो. You measure the distance between any two points in space using some kind of a meter rod, a meter scale, standardized scale. So let's suppose that I take a scale. ओके, ये स्केल जो है इसके हाथ में, इस बंदे के हाथ में, ठीक है. दिस स्केल इज इन हिज हैंड. ओके, दिस इज अ स्केल विच इज प्रेजेंट इन द हैंड ऑफ द एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर. हैज अ मीटर रॉड in his hand. ओके, अब लेट्स सपोज ये मीटर रॉड जो है लॉन्गिट्यूडली उसी डायरेक्शन में है जिधर रिलेटिव वेलोसिटी हो रही है. तो हमें सिर्फ क्या करना है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट व्हाट आर द पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स. क्या एंड पॉइंट्स किसको रेफर करते हैं? ठीक है, लेट्स सपोज जो मीटर रॉड की जो एंड पॉइंट्स है दे हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये एक एंड पॉइंट है ए, दूसरा एंड पॉइंट है बी. ठीक है, तो मीटर रॉड का जो एंड पॉइंट्स है दे हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी with x a dash and x b dash with respect to the s dash frame of reference, and they have coordinates of x a and x b with respect to the s frame of reference. जो s frame of reference है उसके लिए x a और x b है, जो s frame of reference है उसके लिए x a और x b है, और जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए एक्स ए डैश और एक्स बी डैश है. ठीक है, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स के साथ हम डील नहीं करेंगे. वी आर ओनली गोइंग टू लुक एट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पेस, द डिस्टेंसेस बिटवीन पॉइंट्स इन स्पेस along the x axis or along the direction of relative motion. Alright, so let us invoke the Lorentz transformations. तो अच्छा एक बात बताओ सबसे पहले, तो according to Lorentz transformation, pre-Lorentz transformation, Galilean transformations, according to Galilean transformations, x b dash minus x a dash should be equal to x b minus x a, है कि नहीं?
distance between 2 points according to observer in S frame should be equal to distance between 2 points according to observer in S dash frame according to Galilean transformations. Is this true or not? जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें कोई भी स्पेस में या किसी भी ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट्स दो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए बराबर ही होते हैं ना, मतलब उनका डिस्टेंस तो बराबर होता है. Yes, sir. Okay. Now let us do the calculations according to Lorentz transformations. We'll see the difference. According to Lorentz transformation, what is going to happen is, first we're going to write down the equations. So x b dash is equal to gamma xp minus v tb, okay, and xa dash is equal to gamma xa minus v ta, ठीक है. Now xb dash minus xa dash is equal to gamma xb minus xa minus v tb minus ta. अब tb माइनस ta क्या है? tb माइनस ta बेसिकली वो है कि जो एस ऑब्जर्वर है उसने एक्स ए और बी को मेजर किया. यू मेजर द पॉइंट्स, यू मेजर द पोजिशन ऑफ ए एंड बी, है ना. सो tb इज द time at which the blue observer measures the position of A. उसी तरह से TB is the time at which आपका जो ये ब्लू ऑब्जर्वर है measures the position of B. अब अगर हमें ए, क्योंकि ये जो स्के रॉड है वो एस डैश फ्रेम में रेस्ट पे है ना. एस डैश फ्रेम में जो बंदा मूव कर रहा है उसके हाथों में है, तो अगर उसके हाथों में है तो ये जो रॉड है इस बंदे के लिए भी ट्रैवल कर रहा है ना किसी वेलोसिटी पे. तो अगर इस बंदे के लिए ये रॉड जो है किसी वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर वो रॉड के लेंथ मेजर करना चाहता है तो ही हैज़ टू मेजर द एंड पॉइंट्स TB and TA, sorry, at the same instant. TB must be equal to TA, yes or no? क्योंकि जो रॉड है या मीटर स्केल है या जो स्टिक है या जो ऑब्जेक्ट है वो एस फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए भी मूव कर रहा है, तो अगर उसकी डायमेंशंस मेजर करनी है तो उसकी एंड पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स को एक ही इंस्टेंट पे मेजर करना पड़ेगा. यस और नो? यस सर. या फिर ये समझ में नहीं आया? एंड पॉइंट्स क्यों मेजर करना पड़ेगा बताओ? एक ही पॉइंट पे नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर वो आगे ट्रेवल कर जाएगा. आगे ट्रैवल कर जाएगा, वेरी गुड. और उसका जो लेंथ है हमें गलत में मेजर होगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप अगर किसी कुछ इमेजिन करते हो कि आपके पास कोई एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी आपके लिए जो है किसी वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद गाड़ी यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है. अगर आप दो अलग अलग इंस्टेंसेस पे, लेट्स सपोज एक इंस्टेंट पे एंड पॉइंट ये मेजर करते हो और दूसरे इंस्टेंट पे एंड पॉइंट ये मेजर करते हो, तो बेसिकली अगर आप दो अलग अलग इंस्टेंसेस पे मेजर करोगे दो एंड पॉइंट्स, तो आपका जो गाड़ी का लेंथ आएगा वो सही नहीं आएगा. अगर गाड़ी का लेंथ चाहिए तो एक ही इंस्टेंट पे आपको दोनों एंड पॉइंट्स मेजर करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट इट इज. बोथ द एंड पॉइंट्स हैव टू बी मेजर्ड एट द सेम इंस्टेंट, ठीक है. बोथ एंड point coordinates need to be measured at the same instant. Otherwise it will not give us the length. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है TB माइनस TA, दैट इज़ नथिंग बट ज़ीरो.
If this is nothing but 0, then you automatically get gamma xb minus xa. अच्छा, अब एक बात बताओ, xb minus xa is the length of the rod with respect to a person in the S frame of reference, and xb dash minus xa dash is the length of the rod with respect to a person in the S dash frame of reference. ठीक है, so finally we end up getting xb dash minus xa dash is equal to gamma xb minus xa. ठीक है, तो यहाँ पे इन डेफिनेशंस को थोड़ा ध्यान से देखिए. xb dash minus xa dash is the length of rod or 2 points with respect to an observer at rest with respect to rod. है कि नहीं? एस डैश फ्रेम में जो बंदा है वो रॉड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है कि नहीं? यस सर. जबकि एक्स बी माइनस एक्स ए इज द लेंथ ऑफ द रॉड और बिटवीन 2 points with respect to an observer in relative motion with respect to rod. रॉड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में है, मतलब रॉड अगर एस डैश फ्रेम में है तो जो एस फ्रेम वाला बंदा है वो रॉड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन है. तो एक्स बी माइनस एक्स ए इज द लेंथ ऑफ द रॉड विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन. यस, इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये गलती होती है कि हम जो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम रेस्ट में मान लेते हैं, और एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम मोशन में मान लेते हैं. वैसा नहीं है. डायग्राम में ऐसा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि रॉड मैंने एस डैश फ्रेम में रखा है, रॉड को मैंने एस डैश फ्रेम में रेस्ट पे रखा है, देयरफॉर एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स है दे आर विथ रेस्पेक्ट टू रेस्ट ऑब्जर्वर, और एस के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स है दे आर विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर. इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर सर. तो द लेंथ ऑफ अ रॉड विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑब्जर्वर is known as what? Is known as The proper length. proper length. Proper length is a very important quantity because it is an invariant quantity. Okay, एक invariant quantity है proper length, and it's very very important because अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए स्पेस के 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है अलग अलग होगा, लेकिन जो एक इंसान उस स्पेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है उसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ही एक ही वैल्यू होगा, प्रॉपर लेंथ. इसको हम कहते हैं डेल एल नॉट. ठीक है, एंड इसको हम बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मोशन डेल एल. सो फाइनली वी हैव डेल एल नॉट इज इक्वल टू डेल एल अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. So finally we get the equation del L is equal to root over 1 minus v square upon c square del L naught. So del L naught is the length of an object with respect to an observer in the rest frame of reference, and del L is the length of an object or the length between 2 points in space with respect to an observer that is in motion with respect to the rod or something like that. ठीक है, so this is known as length contraction. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी मीटर स्केल है, कोई भी स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, उसका जो डिस्टेंस है विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट वो अलग होता है, और द मोमेंट द ऑब्जर्वर स्टार्ट्स मूविंग वो डिस्टेंस जो मेजर करेगा वो अलग होता है. तो लेंथ अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रैक्टेड length appears to be contracted for a moving observer. यहाँ पे एक और चीज़ है, प्रॉपर लेंथ इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी. प्रॉपर लेंथ मतलब लॉरेंस इनवेरिएंट है, मतलब कोई भी रेफरेंस फ्रेम हो प्रॉपर लेंथ एक ही होगा सबके लिए.
इनवेरिएंट का मतलब है डजंट चेंज फॉर वेरियस ऑब्जर्वर्स, मतलब लेंथ चेंजेस बट प्रॉपर लेंथ का जो डेफिनेशन है, जो वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होगा. लेंथ appears to be contracted for a moving observer, which is known as length contraction. Clear है? Understood? यस सर. अच्छा एक बात बताओ, Yes, sir. आप लोगों को इंक्लाइंड रॉड का वो का कैलकुलेट करना आता है? इंक्लाइंड रॉड, Yes, sir. फिर उसके कंपोनेंट लेके एक्स वाई. ठीक है, तो मुझे करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, आप कर लोगे मतलब. यस सर. ओके, तो लास्ट में कॉन्सिक्वेंस बता देता हूँ, इज टाइम डायलेशन. Okay, one very important third consequence of the postulates of STR is the time dilation. Again, let us start with the same setup. Let us draw the same coordinates. There are two observers in two different frames of reference as an hash dash. One is moving with respect to the velocity v compared to the other in the x axis. ठीक है, अगर हम एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि लेट्स सपोज पहले ऑब्जर्वर के हाथ में आपके पास एक रॉड थी, ठीक है, अब दूसरे ऑब्जर्वर के हाथ में लेट्स सपोज मैं एक टॉर्च दे देता हूँ. लेट मी गिव इट अ टॉर्च. ठीक है, ये जो टॉर्च है उसमें क्या होता है, लाइट जलती है बेसिकली. तो दूसरा ऑब्जर्वर के हाथ में जो टॉर्च है वो क्या करता है, एक बार टॉर्च को ऑन एंड ऑफ करता है. जब एक बार ऑन एंड ऑफ करता है तो एक वेव फ्रंट निकलता है, और दूसरी बार ऑन एंड ऑफ करता है तो दूसरी बार ऑन एंड ऑफ करता है तो दूसरा वेव फ्रंट निकलता है. ठीक है, टू इवेंट्स. सो लेट मी डिफाइन इवेंट ए. एंड इवेंट बी. So event A is the first wave front emitted when the orange observer switches on the torch and switches it off, and the event B is the second wave front emitted when the orange observer switches the torch on and off. ठीक है, तो इवेंट एक हो गया आपका इवेंट ए, दूसरा हो गया इवेंट बी. सेम ही लोकेशन पे हो रहा है बट अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं. ठीक है, इवेंट ए और इवेंट बी की जो लोकेशन है वो सेम ही है बट अलग अलग टाइम पे है. सो फॉर एग्जांपल इवेंट ए के लिए अगर हम देखें और इवेंट बी के लिए देखें, तो इवेंट ए की जो लोकेशंस हैं दे आर गिवन बाय XA, XB, sorry, XA, YA, ZA and TA with respect to the S observer. and even B की जो coordinates है वो है XB, YB, ZB and TB with respect to the S observer. On the other hand, event A की जो coordinates है they are given by XA dash, YA dash, ZA dash and TA dash with respect to the S dash observer, and XB dash, YB dash, ZB dash and TB dash with respect to the S dash observer. तो यहाँ पे हम सिर्फ टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम्स को कंपेयर करेंगे कि टाइम के बीच टाइम का कंपैरिजन क्या होता है. अगेन सेम थिंग,
अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस जो टाइम पीरियड डिफरेंस होता है इवेंट बी और इवेंट ए के बीच with respect to observer in the S frame is the same as the time period difference between event A and event B with respect to the S dash frame of reference. Yes or no? Yes, sir. This is very important. एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दो इवेंट्स के बीच का जो टाइम पीरियड है दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी दोनों इवेंट्स के बीच का टाइम पीरियड भी वही रहेगा अकॉर्डिंग टू द प्री आइंस्टाइनियन दैट इज न्यूटोनियन पर्सपेक्टिव. ठीक है, अगर एक क्लॉक है, क्लॉक का एक कांटा यहाँ पे होता है, थोड़ी देर बाद एक कांटा यहाँ पे होता है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉक टू गो फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन टू दिस कॉन्फ़िगरेशन इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, चाहे कोई रेस्ट पे है चाहे कोई रिलेटिव मोशन पे, डजंट मैटर अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस. द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस. Let us look at it. According to Lorentz transformations, we have the equations. So यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं, इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं. टी ए इज इक्वल टू गामा टी ए डैश प्लस वी एक्स ए डैश अपॉन सी स्क्वायर एंड टी बी इज इक्वल टू गामा टी बी डैश प्लस वी एक्स बी डैश अपॉन सी स्क्वायर. राइट. So TB minus TA is equal to gamma TB dash minus TA dash plus V upon C square XB dash minus XA dash. अब XB dash और XA dash they are happening at the same location, right? मतलब जो S frame of reference में वो बंदा जो है एक ही जगह पे टॉर्च को होल्ड करके वो है जो है स्विच ऑन एंड ऑफ करता है. सो देयरफॉर दे शुड गो आउट टू बी जीरो. यस, एक्स बी डैश इज इक्वल टू एक्स ए डैश बिकॉज द ऑब्जर्वर is just switching the torch on and off twice. That's it. He's not moving with respect to himself. So therefore, this simply becomes TB minus TA is equal to gamma TB dash minus TA dash. Now, जो TB dash minus TA dash है, that is the time period between both the wavefronts with respect to an observer in rest, and जो TB minus TA है, that is time period between two wavefronts with respect to an observer in relative motion. Again, इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है. This is the time period between two events with respect to an observer at rest with respect to the events. ठीक है, हमारे रेस्पेक्ट में नहीं. वो जो एस डैश फ्रेम में जो बंदा है, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में इवेंट्स हो रहे हैं, देयरफॉर टी बी डैश माइनस टी ए डैश विल बी द टाइम पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट रेस्ट. तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल. अगेन, प्रॉपर टाइम इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी. इसको हम बोलते हैं प्रॉपर टाइम. इट्स एन इनवेरिएंट क्वांटिटी. We'll come to what invariant quantities are maybe in a later class. Invariant quantity. While on the other hand, TB minus TA is the time period between two events with respect to an observer in motion. मतलब एस फ्रेम जो है हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रेस पे माना है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू द टॉर्च एस बंदा रिलेटिव मोशन पे है. ठीक है, तो देयरफॉर और हम लिखते हैं डेल टी इज द टाइम पीरियड बिटवीन बाय एन ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन एंड डेल टी नॉट इज द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जर्वर in at rest with respect to the physical event. So this is the expression of time dilation.
और del t is equal to del t naught upon root over 1 minus v square upon c square. What happens is that if you measure the time period between two physical events with respect to an observer who is at rest in that setup, that's a proper time interval, and the moment you start moving with very high velocities with respect to the physical event, the same time period between those two physical events seems to be dilated, बढ़ जाता है. Time period between same physical events appear to be dilated, which is known as time dilation. तो क्या होगा, दो फिजिकल इवेंट्स को हम मान सकते हैं कि कोई वॉच है, वॉच यहाँ पे होता है, थोड़ी देर बाद जो है वॉच यहाँ पे पहुँच जाता है, 1 सेकेंड. दीज आर टू फिजिकल इवेंट्स, लेट्स सपोज ए एंड बी. अगर आप रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो ये दोनों फिजिकल इवेंट्स जिस टाइम पीरियड में होता है, और अगर आप किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं तो उनके लिए ये दोनों फिजिकल इवेंट्स जिस टाइम पीरियड में होगा वो बढ़ जाएगा. आप रेस्ट में हैं तो द टाइम पीरियड टेकन बिटवीन दीज टू फिजिकल इवेंट्स, और अगर आप रिलेटिव मोशन में हैं द टाइम पीरियड टेकन बिटवीन द सेम टू फिजिकल इवेंट्स आर डायलेटेड. So therefore, time period measured by two relative observers in relative motion are not necessarily the same. अगर दो ऑब्जर्वर सेम फिजिकल इवेंट को स्टडी कर रहे हैं, द टाइम पीरियड्स मेजर्ड बाय देम इज नॉट नेसेसरली द सेम. दिस गोज वेरी मच अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द न्यूटोनियन आइडिया ऑफ the uniformity of absoluteness of time for all observers. Various observers will measure time to be different for different observers. The events will happen faster for some and slower for somebody else depending upon the nature of their relative motion. This is known as time dilation. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर लेकिन जो वॉच हम लोग यूज करते हैं जिसपे मतलब कि सल पावर जनरेटेड होती है, पावर से चलती है, वो उसमें तो डायलेशन दिखेगा नहीं. ओके ये जो हमने फिजिकल इवेंट बोला है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मैकेनिज्म ऑफ दोज फिजिकल इवेंट्स, चाहे वो मैकेनिकल इवेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट हो. जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है एसटीआर का, इट डज नॉट टॉक अबाउट फिजिकल लॉ, मैकेनिकल लॉज, इट टॉक्स अबाउट ऑल फिजिकल लॉज. एवरीथिंग, चाहे आप कोई भी फिजिकल इवेंट को मैकेनिकल मोशन से दिखाएं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट से दिखाएं या कोई स्टैटिस्टिकल थर्मल इवेंट हो, कुछ भी हो. मैंने तो यहाँ पे इवेंट ए को लिया है, जैसे एक टॉर्च को स्विच ऑन या ऑफ किया है, लेकिन जो मैकेनिज्म यहाँ पे और उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है. कोई भी फिजिकल इवेंट होता है, चाहे मैकेनिकल इवेंट हो, थर्मल इवेंट हो, ऑप्टिकल इवेंट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट हो, कुछ भी इवेंट हो, उन सारे इवेंट्स का कोई ना कोई लोकेशन होगा और उन्हीं लोकेशन और टाइम पीरियड के बीच का ये रिलेशनशिप है. तो अगर आपके पास कोई मैकेनिकल वॉच हो या इलेक्ट्रिकल वॉच हो या बायोलॉजिकल वॉच हो, कुछ भी हो, every event associated with those phenomena will experience dilation. तो the watch is the result of the nature of physical laws. ठीक है, तो वो it doesn't matter कि आपके पास वो इलेक्ट्रिकल वॉच है या कुछ है. इलेक्ट्रिकल वॉच भी सेम डायलेटेड होगा. जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक वॉच है जहाँ पे कांटा 0-1 पे होता है और थोड़ी देर बाद वो 0-2 पे हो जाता है. ठीक है, इस बंदे के एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से. अगर अभी वो वॉच जो है आपके रेस्पेक्ट में जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से जो है आगे किसी वेलोसिटी में जा रहा है, तो जब 1 होगा और जो थोड़ी देर बाद जब 2 होगा, तो वो दोनों इवेंट्स के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो दोनों के लिए सेम नहीं होगा. The time will appear dilated for an observer in relative motion with respect to that clock. Because यहाँ पे आइंस्टाइन के postulates किसी मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये डिपेंडेंट है स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स के ऊपर. It has something to do with the nature of space time. एक्सक्यूज सर. हाँ जी सर जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में होता है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में फ्रेम्स दूसरे फ्रेम से देखने में तो मतलब कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन एक्चुअल में तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती होगी ना.
आप जो ये एक्चुअल बोल रहे हो, एक्चुअल का मतलब क्या है? सर जो प्रॉपर लेंथ, सपोज दैट अगर यस डैश फ्रेम पे मतलब किसी ने एक स्केल ले रखी है, हम्म। तो सर अगर यस फ्रेम से हम देखेंगे तो उसमें ए बी पॉइंट तो मतलब कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुए दिखेंगे, हम्म। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि वो मतलब जो एस एस डैश फ्रेम पे बंदा स्केल लिए हुए तो स्केल थोड़ी छोटी हो जाएगी, वो हमें दिखेगी छोटी लेकिन हो तो नहीं जाएगी ना। नहीं, दिखेगी का मतलब क्या है? इट्स नॉट एन ऑप्टिकल इवेंट, इट्स एन एक्ट ऑफ मेजरमेंट। जो एज डैश फ्रेम में है वो बंदा भी स्केल को मेजर कर सकता है, और जो एज यस फ्रेम सर। में है वो बंदा भी स्केल को मेजर कर सकता है। अगर जो बंदा एस डैश फ्रेम में उसके लिए स्केल 1 मीटर है, तो जो बंदा एस फ्रेम में उसके लिए हो सकता है स्केल 0.5 मीटर हो। तो आप जिसको एक्चुअल मान रहे हैं, आप बेसिकली वो एक्चुअल इज़ नथिंग बट अ सब्सटीट्यूट फॉर प्रॉपर लेंथ। रिलेटिविटी में यस उसको सर। प्रॉपर लेंथ बोलते हैं। प्रॉपर लेंथ मतलब रेस्ट में, मतलब अगर आपके हाथ में कोई रॉड है और आप यस सर। वेलोसिटी ऑफ लाइट के हाफ स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके लिए उसकी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी। यस सर। समझ रहे हो? मतलब आप तो रॉड के पर्सपेक्टिव से रेस्ट में ही है ना, लेकिन कोई यस सर। बंदा अगर रेस्ट पे है, वो आपको देख रहा है और आपके हाथ में जो रॉड है उसकी डायमेंशंस को मेजर करने की कोशिश कर रहा है वाया वॉट एवर मैकेनिज्म, उसके लिए रॉड की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। ये सर, ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर लेंथ तो जो अगर सपोज दैट अगर हम जो रॉड लिए वो तो छोटी नहीं हो सकती, वो मतलब किसी के प्रोस्पेक्टिव में छोटी होगी। यस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉपर लेंथ हमेशा इन्वेरिएंट होता है। प्रॉपर यस लेंथ इज एन सर। इन्वेरिएंट ओके। क्वांटिटी, वो कभी चेंज नहीं होती है। जब ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में होता है, उसके लिए लेंथ शॉर्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट यस खुद सर। के लिए छोटा नहीं होता, खुद के लिए वो ऑब्जेक्ट कभी छोटा नहीं होगा। प्रॉपर लेंथ मतलब वो तो मैं खुद सर खुद के लिए उसका लेंथ क्या है। मैं सर यही कहना चाह रहा था कि जो आप टाइम डायलेशन में बता रहे हैं ना, सपोज दैट अगर यहाँ पे मतलब कि इलेक्ट्रिक ये वॉच से टाइम मेजर किया जा रहा है और वहां पे भी ये टाइम मेजर किया जा रहा है, दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो दोनों के लिए फिर टाइम सेम होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या है, ये बंदे के लिए, पहला जो बंदा है उसके लिए वॉच रेस्ट पे है, दूसरा जो बंदा है उसके लिए वॉच मोशन पे है। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। तो जो बंदा ऑब्जेक्ट के रेस्ट पे है उसके लिए जो 1 सेकेंड होता है, और जो बंदा ऑब्जेक्ट के लिए मोशन पे है उसके लिए जो 1 सेकेंड होता है, वो दोनों अलग अलग है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, कि अगर तुम्हारे हाथ में एक वॉच है और उसका जो टाइम फ्लो जिस रेट में करता है 1 सेकेंड 2 सेकेंड, और तुम अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के हाफ स्पीड में ट्रैवल करते हो, तो तुम्हारे लिए वो कुछ चेंज नहीं आएगा, यस सर। तुम्हारे लिए वो सेम ही रहेगा। लेकिन कोई बंदा अगर रेस्ट पे है और उसके लिए वॉच अगर जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट में मूव करती है, तब उसके लिए जो है वॉच विल टिक एट अ स्लोअर रेट। यस। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत बहुत है कि ये इसकी कुछ इसकी कुछ बहुत ज़्यादा बहुत फिजिकल इम्पैक्ट्स है। फॉर एग्जांपल, एक जो बहुत कॉमन, कितना टाइम बचा है? हाँ, ऑलमोस्ट टाइम इज़ अप, लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, टाइम डायलेशन को जो देखा जाता है तो वो होता है रेडियो एक्टिविटी के केस में। जब अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, लेट्स सपोज ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब कॉस्मिक रेज हिट करते हैं ना, कॉस्मिक रेज जब हिट करते हैं तो यहाँ पे म्यूऑन्स क्रिएट होते हैं। म्यूऑन्स आर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, आपको मालूम ही होगा म्यूऑन्स के बारे में, है ना? तो ये क्या होता है, ये अर्थ की तरफ नीचे ग्राउंड की तरफ आता है, ऑलराइट, एट वेरी वेरी हाई वेलोसिटीज़। अब क्या होता है, म्यूऑन को जब हम रेस्ट में स्टडी करते हैं लैब में, रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उनका एक लाइफ टाइम होता है। ठीक है, जब रेस्ट में स्टडी करते हैं उनका एक लाइफ टाइम होता है। लेकिन जब कॉस्मिक रेज एटमॉस्फेयर को हिट करता है और म्यूऑन्स बहुत ही हाई वेलोसिटीज़ के साथ एटमॉस्फेयर के थ्रू पेनिट्रेट करता है, तो जब तक वो म्यूऑन वैनिश करता है, तो जितना टाइम उसको लगता है दैट इज़ नॉट द सेम एज द प्रॉपर टाइम। मतलब अगर लेट्स सपोज प्रॉपर टाइम इसका 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के अकॉर्डिंग कि कोई म्यूऑन अगर यहाँ क्रिएट होता है, उसको यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे रेस्पेक्ट में टाइम डायलेटेड होता है, इसीलिए उसका लाइफ टाइम जो है 1 सेकेंड ना होकर के 2 सेकेंड होता है और वो यहाँ तक पहुँच जाता है। These are some very real life consequences. Are you understanding? यस सर।
तो मियोन के रेस्पेक्ट में तो लेट्स सपोज उसका एक सेकंड नहीं, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, मियोन के रेस्पेक्ट में तो उसका अपना लाइफ टाइम 1 सेकंड है, लेकिन हमारे लिए उसका लाइफ टाइम डायलेट हो गया, और क्योंकि डायलेट हो गया तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जबकि उसको लगता है कि जो डिस्टेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. सो तेरा मीनिंग इज हैपनिंग. एनीवेज आई थिंक माय ओके टाइम इज अप. हम इसको कंटिन्यू करेंगे द नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट. ओके ओके, थैंक यू सर, ओके.